Hello, welcome to the Career Show with Abhilash. Every time we try that we bring people from different careers. करियर एक ऐसी चीज है जो जिसके आजकल इतने सारे रूप है, इतने सारे पाथवे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे लोगों से जो इस करियर पाथ में चल चुके हैं, जो आपसे सीनियर हो सकते हैं, जो आपको वो सब बता सकते हैं द करियर डायलेमास एंड वेरियस थिंग्स व्हिच दे हैव गॉन थ्रू एंड व्हिच with the knowledge if you have, आप थोड़ी सी उसके लिए सजग रह के यू कैन बी अवेयर अबाउट इट एंड टेक a good decision while making your career decision. And today is a very important day because we are celebrating or launching or releasing this episode on National Doctors Day. We have with us Dr. Alok Kumar from AIMS. Dr. Alok Kumar is a young, vibrant doctor who has done his medical studies from the top institute in the country. He is MBBS AIMS New Delhi and also MD Community Medicine from AIMS New Delhi. The best part of is that his MD Community Medicine has given him a name, and he's one of the most known doctors among the rural area, tribal area of Jharkhand. With such young person who is contributing in spreading or making the last mile reach of healthcare at the nook and corner of the country. We are privileged to have Dr. Alok Kumar in our show today. Welcome, Dr. Alok Thank you Kumar. for inviting me for your show. Thank you so much for your time. I know you have, uh, I understand that your calendar has areas to visit in tribal areas and areas where, in fact, electricity hasn't reached today, till date. And in that, you have accepted our invitation for the Doctor's Day special edition. We are very much thankful. I would like you to please let our audience, who are mostly youngsters, who are looking to be the next emerging workforce, maybe in the college education, maybe in the school education, be aware about the various career path and career dilemmas which you have gone through since from your school to your current work profession. So, may I request the stage is yours? Please let us know your story of becoming a doctor. Let me start by telling your viewers regarding the Doctor's Day because today we are celebrating Doctor's Day. We usually celebrate a day to mark something important in our life. So, a doctor, as we know that right from our birth till our last breath, a doctor has a very prominent role in our life. And one day in a year, we want to commemorate those people who are treating us. And in a sense, I would like to tell the viewers that Doctor's Day is not only about the doctors. Actually, the treatment happens through a medical team, and doctor is a captain of that team. So, in a way, we are remembering the whole team and showing the gratitude to the whole medical team through this day. बिल्कुल सर, आपने सही कहा एक्चुअली। हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहा जाता है आजकल। Yeah, आजकल मतलब ये चर्चा में है कि इसको हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहा जाए और इसमें बहुत सारे कैरियर्स हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पूरे डॉक्टर के लीडरशिप के साथ चलती हैं। तो मैं चाहूँगा बिल्कुल कि विद टू आवर ऑडियंस आप वो भी बताएँ बिकॉज़ डेफ़िनेटली डॉक्टर एक बनना सबका एस्पिरेशन है, पर लोग अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री से भी जुड़ना चाहें आपकी स्टोरी के बाद अब अगर आप थोड़ी-सी उसमें भी लाइट डाल सकें कि हाउ पीपल कैन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और वेरियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाउ दे कैन बी पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज़ वेल। बिल्कुल जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। डॉक्टर एक ऐसी चीज है जिसके लिए मतलब जो टॉप एस्पिरेशन होता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि डेंटिस्ट्री हो गई, फिर वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, मतलब ह्यूमंस आजकल हम लोग बात करते हैं वन हेल्थ की, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एंड दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड।
सो उसके बाद अगर ह्यूमन एस्पेक्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आते हैं और भी लैब टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट्स होते हैं, और भी वेरियस तरह के आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ये सब तरह के जो भी नर्सेज, हमारे द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे हॉस्पिटल के केयर टेकर्स होते हैं पेशेंट्स के। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है इस पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। प्लस आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में रन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली या मैनेजेरियल पोजीशंस पे एमबीए के किए हुए लोग। तो एक पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें कि एक पर्सन को अपना एक रोल उसमें ढूंढना है, अपने कैपेबिलिटीज, अपनी मेरिट के हिसाब से, जो उन्हें पसंद है ये चीजें, और उस हिसाब से अपना एक करियर बिल्ड कर सकते हैं इस फील्ड में। मैं अपनी कहानी जहाँ तक बता सकता हूँ कि आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन रांची, झारखंड। तो जब मैं बढ़ रहा था समय के साथ, जब 8वीं 9वीं 10वीं के अराउंड में, तो मेरा बचपन से ही इरादा था कि डॉक्टर बनना है। तो उसमें एक खास रोल ये आया कि उस समय हमारे एक मशहूर क्रिकेटर एम एस धोनी भी राइज कर रहे थे। तो वहां पे मेरे को लगता था कि यार, मतलब हमारे शहर को काफी लोग जानते नहीं है, लेकिन आज इस बंदे के नाम से सब लोग जान रहा है कि हाँ, रांची ये है। तो मुझे भी कल को कुछ ऐसा कर दिखाना है कि मेरे नाम से भी मेरे शहर को लोग जान पाए। और उसी जिद की वजह से मैं लगा रहा, और ऊपर वाले की कृपा से मैं एम्स में सिलेक्ट हुआ, अपना एमबीबीएस करने के लिए गया वहां पे, जो कि भारत का टॉप मेडिकल कॉलेज है। और जहाँ तक बात की जाए लाइफ की मेडिकल कॉलेज में, तो डेफिनेटली उसके अराउंड में बहुत सारी, जब जा रहा था तो उस समय बहुत सारे डर हुआ करते थे कि जैसे मेडिकल कॉलेज में काफी रैगिंग होगी। उसके अराउंड में मूवीज वगैरह में भी काफी दिखाए जाते थे कि ऐसी रैगिंग होती है। तो एक सबसे बड़ा, जैसे ही सिलेक्ट होने की खुशी थी, उसके साथ में एक डर आ गया कि अब क्या होगा पता नहीं। बट कॉलेज में जब गए तो वहां पे इतने सपोर्टिव सीनियर्स मिले और सारा कुछ इतना अच्छा माहौल रहा कि कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। दिन कैसे निकल गए, मतलब एक घर के अलावा मुझे एक पूरा परिवार मिला वहां पे। और इतना फन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई की आदत तो बचपन से थी, बट इतने मजेदार माहौल में कि कोई ऊपर से ये नहीं बोल रहा ये पढ़ो वो पढ़ो, आपको बस एक आदत हो जाती है बस, और आप मजे में पढ़ाई करते हो अपनी। सर, मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे एक पॉज़ लेने के लिए बोलूँगा, बिकॉज़ आपने तो अपनी जर्नी बता दी बड़ी ईज़िली कि आप टॉप कॉलेज में गए, बट एज़ पहले भी आपने कोट किया कि टॉप एस्पिरेशन जो होता है बच्चों का करियर का, वो है डॉक्टर बनने का, टू बिकम अ डॉक्टर। एंड ये स्टार्ट होता है जब बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है विथ बायोलॉजी इन 11th क्लास, जो कि पद्धति रही है, द वे इट हैज़ बीन। So currently, जो many of the audiences, in fact, parents are also need to be aware about that part कि अगर मेरा बच्चा wants to be in this field, healthcare industry field, so what kind of subjects? I would like you to speak a little bit more on the 8th, 9th, 10th, where the nurturing of the dream happens. फिर 11th 12th फिर क्या एंट्रेंस है इंडिया में अगर डॉक्टर बनना है, और आजकल इनफैक्ट ये भी न्यूज़ में आता है कि बहुत सारे बच्चे बाहर भी मेडिकल पढ़ने जाते हैं, तो उनका क्या स्कोप है? थोड़ी-सी आप अवेयरनेस फेज़ बाय फेज़ स्कूल स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स के लिए, फिर जो 11th-12th में हैं, फिर किस टाइप का क्या करना है? जो आपके लाइफ में आपने किया है, वो ठीक है। थोड़ी-सी अगर आप हमें अवगत कराएँ। ठीक है। इसमें मैं अपनी भी कहानी थोड़ी-सी बताऊँगा, और एक जनरल जो मेरा ओपिनियन है कि क्या करना चाहिए जो भी यंगस्टर्स अभी अगर देख रहे हैं आपके इसके हमारे इंटरव्यू को, तो मुझे ऐसा लगता है कि खास करके पेरेंट्स को तो कभी नहीं बांधना चाहिए बच्चों को कि 8वीं में मेडिकल की कोचिंग करा दी, और मतलब या इंजीनियरिंग की कोचिंग करा दी। 10वीं तक बच्चों की कोचिंग जो होनी चाहिए, वो कोचिंग, मैं नहीं बोलूंगा स्कूल में ही इतनी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए कि बच्चे को कोचिंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन जिन्हें अगर थोड़ी स्पेशल अटेंशन की जरूरत है स्कूल के बाहर, और अगर वो ट्यूशन कोचिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें जो 10वीं की पढ़ाई के लिए कोचिंग है उसी के लिए कोचिंग करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के हिसाब से कोचिंग करा रहे, क्योंकि 10वीं तक जब बच्चे का माइंड होगा, उस समय तक वो बना नहीं होता है कि मुझे
कौन से फील्ड में एकदम पक्का से ही जाना है। और हमें मौका भी देना चाहिए कि 10वीं तक वो कुछ अपने फील्ड को चेंज भी कर सके। उदाहरण के तौर पे मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ कि मैं मैथ्स में बहुत ही अच्छा था बचपन से ही। मतलब मेरे 10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। तो इस हिसाब से सभी लोगों का जैसे होता है हमारे इलाके में कि यार इसे तो ये अभी इंजीनियरिंग करना चाहिए और आईआईटी में जाएगा। बट मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का इतना ज्यादा मन था कि मैंने मैथ्स में इतना अच्छा होने के बावजूद मैंने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया और मैंने उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहा। तो मैं काफी खुश नसीब था कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे इस चीज में। तो मैं बाकी पेरेंट्स से भी ये आग्रह करूंगा कि बच्चों को बांधे नहीं अपने चीजों में। 10वीं के बाद अगर उसकी लाइकिंग है कि मुझे मेडिकल जाना है या इंजीनियरिंग जाना है, उसके हिसाब से उसे साइंस फील्ड चुनना है और मेडिकल में जाने के लिए बायोलॉजी लेना है। इसमें सबसे ज्यादा डर पेरेंट्स को यही होता है कि अगर ये डॉक्टर नहीं बन पाया तो। इसीलिए काफी बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैथ्स ले लो, इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्कोप रहेंगे और हम कुछ करा देंगे तुम्हें। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि बायोलॉजी भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। इसमें अगर बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन पाया, वैसे केस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जैसे हमारे 1 लाख सीट्स हैं। उसके अलावा ऑन एंड एवरेज इंडिया से 20,000 लोग एवरी ईयर जाते हैं फॉरेन में एमबीबीएस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 1,20,000 लोगों का तो डॉक्टर बनने का सपना पूरा होता है। उसके अलावा डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं आप। फिर जैसे कि अदर कोर्सेज होते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं और रेडियोग्राफर का कोर्स कर सकते हैं। और इस तरीके से कोर्स करते हुए आप अपना एक उस कोर्स में बढ़िया करके आप एक टॉप लेवल का अपने लिए करियर चुन सकते हैं। मोस्ट इमर्जिंग जो आजकल कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड आ रहा है। आप आराम से बायोटेक्नोलॉजी को लेके और उसमें एक्सेल करके, मतलब कि अगर आप डॉक्टर ना भी बन पाए, बट उससे भी कहीं ज्यादा आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई इसमें अंत नहीं है कि अगर मतलब कि बायोलॉजी ले लिया तो बहुत कम ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एक जस्ट मतलब हिम्मत करने की बात है और आपको अपना फील्ड चुनना है उस हिसाब से। थैंक यू। एक्चुअली दिस इज़ वेरी मच नीडेड, बिकॉज़ क्या होता है कि उस वक़्त जो करियर प्रेशर और करियर डायलेमा होता है, मैं इनफैक्ट आपसे एक चीज़ पूछना भी चाहूँगा कि अभी आज ही कुछ ही रिसेंटली नीट का भी रिज़ल्ट आया है। तो नीट अभी करंटली द डॉक्टर मेडिकल एस्पिरेशन के लिए दैट इज़ द एंट्रेंस एग्ज़ाम व्हिच इंडिया गोज़ थ्रू। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट, समथिंग अराउंड इट्स प्रिपरेशन, समथिंग अराउंड व्हाट इज़ हैपनिंग, इफ यू आर अवेयर अबाउट इट? देखिए, नीट की जो प्रिपरेशन आजकल हो गई है, वही जो हमारी अभी बात हो रही थी। आज के डेट में पेरेंट्स 8वीं क्लास में ही मेडिकल के कोचिंग में कर देते हैं। जो गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस भी आ रहे हैं कि 10वीं क्लास तक ऐसे कोचिंग नहीं करानी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। बट फिर भी अगर मतलब इतना ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की और ओवर द इयर्स बच्चे इतने प्रिपेयर्ड हो गए हैं और डेफिनेटली हर अगला जनरेशन शार्प होता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें 720 में 720 नंबर लाने वाले ही 80-90 बच्चे हैं शायद। तो मतलब कि जो एम्स न्यू दिल्ली में भी अगर आप 100% मार्क्स भी ला रहे हो तो शायद आपको जगह ना मिल पाए। परिस्थिति ये बन गई है। लेकिन बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए। जो भी हिसाब से वो रैंकिंग लगाएंगे और जितनी इनटेक लेनी होगी वो लेंगे। बट जिन लोगों को अगर 100% मार्क्स लाने पे भी अगर एम्स दिल्ली नहीं होता है, उनके लिए ये है कि ठीक है, आप कोई उससे सेकंड नंबर का कॉलेज में आप चले जाओगे। दुनिया वहां खत्म नहीं होती है और आपके पास एक ज्यादा उम्मीद होगी कि आप एमडी करने के लिए देश के टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहोगे। तो आप अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे कि अगले 5 साल तक मेरे अंदर वो आग बनी रहेगी कि मुझे देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप उस उन बच्चों से भी काफी ज्यादा अच्छा कर पाओगे जो एम्स दिल्ली में अभी पहुंच गए हैं। तो इसीलिए हताश होने की कोई जगह ही नहीं है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। एक और मेरा इसमें ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली, अभी जैसे इंजीनियरिंग लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल होते हैं।
बिकॉज उनकी जो इंजीनियरिंग एजुकेशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, और पूरे चारों साल के पीरियड ऑफ एजुकेशन में वो रेयरली इंडस्ट्री के बारे में जान पाते हैं कि उसको विटनेस कर पाते हैं, तो वो अपना वर्क एरिया कभी देख ही नहीं कर पाते एक्चुअली, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, वेयर दे आर गोइंग टू वर्क, व्हाट इज अ वर्क ऑफ इंजीनियर। ये पढ़ते हैं बट एक्चुअली विटनेस नहीं कर पाते। वेयर एज मेडिकल एजुकेशन हैज सच मॉडल कि हर मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल हॉस्पिटल के साथ है। तो फर्स्ट ईयर से बच्चा जो घुसता है, वो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट पहले देखता है, एंड बिल्कुल। ही इज अवेयर अबाउट हिज और हर वर्क प्रोफेशनल, मतलब कहाँ ये काम करने वाला है आफ्टर द एजुकेशन, वेयर ही इज गोइंग टू इंटरेक्ट। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चे मेडिकल करने के लिए, सोचिए नॉर्थ के बच्चे तमिलनाडु और केरला भी जाते हैं, वो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज सीखते हैं, उनका इंटर्नशिप के दौरान लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इंटरेक्ट करते हैं, जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो भी उनका नीडफुल है वर्क, सो दे लर्न द लैंग्वेज, दे लर्न द कल्चर, सो दैट they can intermingle with the local people। तो मेरा ये, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट कि हाउ डू यू सी दैट, चाहे इस कॉलेज से करें कि उस कॉलेज से करें, भाई आपको तो हेल्थ केयर को तो डिलीवर करना ही है टू दी, और द प्रोफेशन इज अबाउट डिलीवरिंग हेल्थ केयर। व्हाट डू यू थिंक मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया नीड्स टू डू, कि सारे कॉलेजेस चाहे वो अर्बन एरिया में है कि रूरल एरिया में है, हाउ डू दे शुड कम इन अलाइन, आई मीन अलाइनमेंट टू दैट, you being from a top college? One question is that. Second question I would like to ask is, हमें न्यूज़ में बहुत देखने को मिलता है कि रूरल एरिया में डॉक्टर्स जॉइन नहीं करते, जाते नहीं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम देयर कॉलेजेस। सो एंड दैट क्रिएट्स अ बाइफर्केशन की हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, इंक्लूडिंग इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज, रूरल एरिया में एक नॉन डॉक्टर्स, और आई डोंट नो हाउ क्वालिफाइड देयर, बहुत अलग अलग झोला छाप डॉक्टर्स, ऐसे टाइप के लोग भी आ जाते हैं, और दैट काइंड ऑफ मेडिकल एलोपैथी पे भरोसा जो है थोड़ी सी डाउन हो जाता है वहाँ पे। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेडिकल एजुकेशन, सेकंड इज अबाउट रूरल डॉक्टर्स, एंड ये में ओके। मैं आपके कम्युनिटी हेल्थ एज एन एमडी, उस एक्सपर्ट से मैं आप आपका राय जानना चाहूंगा ऑन दैट करियर लाइन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड्स होता है। तो जो भी कॉलेजेस हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से कॉलेज लेना चाहिए, तो वो सारे कॉलेजेस की रैंकिंग होती है, जो रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन वो देते हैं। उनके वेरियस पैरामीटर्स होते हैं कि कॉलेज में एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, कितने पेशेंट्स आते हैं और कितने अच्छे और डाइवर्सिफाइड फैकल्टीज हैं उनके पास, इस हिसाब से। तो एक स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे चॉइस होती नहीं है, क्योंकि उनकी जो रैंकिंग आती है उनके हिसाब से, काउंसलिंग के हिसाब से उन्हें वो कॉलेज मिल जाता है। तो कॉलेज मिलने पे तो बहुत ज़्यादा चॉइस बच्चों की होती नहीं है, 1-2 कॉलेज ऊपर-नीचे अपनी चॉइस पे कर पाते हैं वो लोग। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कॉलेज में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, किताबें तो देखिए पूरे पैन इंडिया सारे लोग बुक्स वही पढ़ते हैं। तो अब एक डॉक्टर कैसे डिफरेंट बनता है, एक बड़े टॉप कॉलेज में डिफरेंट बनता है और एक थोड़े से उससे जो रैंकिंग में नीचे कॉलेज है उसमें डिफरेंटली बनता है। तो ये डिफरेंस किन चीज़ों से आता है? ये डिफरेंस आता है इन्वायरमेंट की वजह से, उन स्टूडेंट के आसपास के कलीग्स कैसे हैं, उनके मेंटर्स कैसे हैं, और इन सब वजह से जो सॉफ्ट स्किल जो होता है उस स्टूडेंट का, उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और खास करके मेडिकल प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, आपका एक जो टेक्निकल स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे प्रोफेशन में सॉफ्ट स्किल भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि जो भी मरीज है उसका इलाज करने में, बीमारी तो ठीक होनी ही चाहिए, बट मरीज संतुष्ट भी होना चाहिए आपके इलाज से। और उसके लिए यही है कि जो भी बच्चे मेडिकल में अगर जा पाते हैं, दे आर सो लकी कि जिनको डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें अपने टाइम को प्रॉपरली कॉलेजेस में यूटिलाइज करना चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल भी सीखना चाहिए, लैंग्वेज हो गया, प्लस एथिकल साइड। आजकल हम लोग जो देखते हैं, इंडस्ट्री का जो टैग देते जा रहे हैं हेल्थ केयर को, उसके साथ साथ में जो कॉमर्शियलाइजेशन का भी एस्पेक्ट आ रहा है, और उससे आगे फर्दर हम लोग देख रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स भी होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है।
और इन सब चीजों से उभरने का यही रास्ता है कि एक बच्चे में जो मोरालिटी और जो एथिक्स होती है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कॉलेजेस में सिखाया जाए। आज अभी मेडिकल करिकुलम रिवाइज हुआ पिछले 3-4 साल पहले, और उसमें एथिक्स का अलग से एक पूरा करिकुलम ही डाला गया है, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीजों को सीख पाए, समझ पाए, और जब वो सोसाइटी में बाहर निकले तो वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए जो कि मरीज के हित में हो और समाज के लिए भी जो अच्छा डिसीजन हो। ये तो रही बात मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड। अभी जो रूरल एरियाज में लोग नहीं जाना चाहते हैं, इसका तो कुछ कुछ प्रमुख कारण आप इन चीजों को देख सकते हैं कि एक डॉक्टर को जैसे अगर इलाज करना है तो उसे कुछ टेस्ट कराने होंगे, कुछ उसको क्लिनिकल सिम्टम्स देखने होते हैं, उसके बाद वो कुछ दवाइयां देता है। तो अगर रूरल एरियाज में कई बार क्या होता है, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, वहां पे कई बार टेस्ट की सुविधा नहीं हो पाती है। अगर टेस्ट के बाद अगर आप दवाइयां लिख रहे हो तो दवाइयां वहां पे गवर्नमेंट में कभी कभी सरकारी अस्पतालों में कम हो जाती हैं, दवाइयां मिल नहीं पा रही होती हैं, और बाहर से दवा दुकान से खरीदने के लिए लोगों के पास उतने रूरल एरियाज में पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी पॉवर्टी का सीन है हमारे देश में। तो इन इस वजह से क्या होता है कि अगर मेरे पास, जब मैंने रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा काम किया है, तो मैंने ये देखा है कि जब कभी हमारे अस्पताल में अगर दवाइयाँ कम पड़ती थी, तो वैसी परिस्थिति में मरीज आते हुए भी मैं उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी लिखी हुई दवाइयाँ ना मेरे अस्पताल में अवेलेबल है, वो खरीद सकता नहीं है। और एक डॉक्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि हर आदमी को वो खरीद खरीद के देता रहे, क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट होगा। तो वैसी स्थिति में एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं बनता। फिर कुछ और भी कारण होते हैं कि जैसे मेडिकल फील्ड में हर समय आपको अपडेट रहना होता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप गांव में चले गए, रूरल एरियाज में अगर शहर से कट ऑफ हो गए, तो फिर आपका जो करियर ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक सा जाता है। आपके कलीग्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक पीयर लर्निंग होती है और इसमें आप एक दूसरे से ही सीखते जाते हो, और डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है। हर एक डॉक्टर हर अगले दिन कुछ सीखता है और कुछ नया सीखने को होता है हर चीजों में। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद और भी कारण ये है कि कुछ फैमिली लाइफ होती है, तो बेसिक एम्यूनिटीज के भी कुछ अभाव में लोग नहीं जाना चाहते हैं गांव के सेटअप में। वाइल मैं थोड़ी बहुत एग्री करूंगा आपके इस पॉइंट से, बट देन आई थिंक हेल्थ केयर को नूक एंड कॉर्नर में देश के अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर शुड बी देयर, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमारा विजन है एक डेवलप्ड नेशन के तहत, या एक नेशन वेयर हेल्थ केयर का रीच कम हो, और मतलब एटलीस्ट इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अ, मैं जो समझ पा रहा हूँ दैट कि वी नीड टू क्रिएट दैट एंटायर गैमेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि एक डॉक्टर को ये ना पता चले कि वो सिंगल्ड आउट हो गया अगर वो रूरल हेल्थ केयर प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपका ही एग्जांपल, मेरे को आपके टीम से एक वीडियो आया था, मैं अगर आप परमिशन देंगे तो मैं उसको बिल्कुल। चलाऊंगा प्लीज, तो देन वी यस। विल डिस्कस ऑन दैट। कि प्रेशर का बीमारी हो गया, तब क्या करना है? हो गया तो आप जो भी डॉक्टर से इलाज कराएंगे वो आपको दवाई देंगे प्रेशर का, ठीक है? तो प्रेशर का दवाई रोज खाना होता है। ऐसा नहीं करना कि आज प्रेशर बढ़ा हुआ लग रहा है आज खा लिए, कल ठीक लग रहा है तो नहीं खाएं, वैसे नहीं करना है। प्रेशर का दवाई रोज खाना है, ठीक है? प्रेशर का दवाई खाते हुए अगर आपका प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो भी नहीं छोड़ना है दवाई। ये सोचना है कि दवाई खा रहे हैं इसीलिए कम आ रहा है, डेली एक ठो खाना, ठीक है? तो जितना डॉक्टर बोले, कुछ लोग का प्रेशर ज्यादा रहता है तो उनको डॉक्टर साहब 2 गो देंगे दवाई, तो 2 गो खाना है, ठीक है? जितना भी दें अपना डॉक्टर का बात मानना है और उसी हिसाब से काम करना है, ठीक है? तो आई थिंक आप थोड़ी सी बताइए इसके बारे में, बिकॉज ये तो रियल इंडिया दिख रहा है मुझे, जिस तरीके से आप कहीं फाउंडेशन के लिए शायद से कहीं गए हैं। कैन यू लिटिल बिट बिल्कुल। एलैबोरेट मैं अबाउट? ये झारखंड के लाइक हिली फॉरेस्टेड एरियाज में अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। तो उसमें ये था कि ये जो वीडियो है वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे था, तो मैं थोड़ी सी जागरूकता क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था लोगों में।
तो इसमें यही है कि कुछ चीज़ों का जैसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि लोकल लैंग्वेज में बात करना है जिसमें कि उन्हें समझ में आए। वो और बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोलना, एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाते हुए अगर हम वो चीज़ मैसेज को हमें देना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और आपको लोग तब कनेक्ट करते हैं जब आप उनके जैसा बोलते हैं, जब आप उनके जैसा दिखते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पेशेंट से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना होता है। तो कभी-कभार आजकल पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हमें डॉक्टर साहब ने टाइम नहीं दिया या फिर सही से बात नहीं किया, जिसको कि मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। मतलब अगर एक डॉक्टर को डेफ़िनेटली मरीज़ को सुनना चाहिए और उससे प्यार से उसकी जो भी समस्या है, उसको समझाना चाहिए। So I think this is a very proud, what I think it is actually a very proud moment because जन सेवा और पब्लिक सर्विस का, बिकॉज मैं तो वीडियो से देख रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ क्या गर्मी हो रही होगी, कि आपने पूरा दिन भर कैसे वहाँ कितने टाइम में पहुँचे होंगे, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा, कि आज आप आए हो, दूसरी बार अगर जाओगे तो कैसे वो आपको वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उस टाइप का रिलेशन रखना। तो ये जो सेटअप होता है इसमें, इसको तो प्राइमरी हेल्थ, जो मैं समझ पा रहा हूँ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को का आउट रीच है, मतलब टू द डेप्थ ऑफ द कंट्री। सो वहाँ पे क्या कुछ कुछ फोटोज मेरे पास आए हैं, मैं एक और वीडियो भी चलाना चाहूँगा। आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड क्या टीम लगती है आपको वहाँ पे पहुँचने का, एंड द एंटायर स्टोरी अबाउट इट। सो आई थिंक कोई बीपी मेडिसिन, बीपी चेक कर रहे हैं मैडम। हाँ, ये और हमारा पार्ट था कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर होम विजिट टू पीपल्स होम। तो ये जो महिला है, बुजुर्ग महिला, मैंने इनका वीडियो लिया था, इनकी परमिशन भी ली कि अगर हम कभी इसको चलाएं लोगों पे, अगर हमें दिखाना पड़े, तो उन्होंने अपनी सहमति दी थी। तो इसमें ये था कि जैसे हम लोगों को ये महिला जो है ये चलने में सक्षम नहीं है। तो होम विजिट करके हम इनके घर पे जा गए, हमने इनका बीपी नापा, तो इनका बीपी बढ़ा हुआ है अब। और फिर हमने इनको बीपी की दवाई दी। 15 दिन बाद फिर से दोबारा इनके घर पे गए, दोबारा चेक किया, तो इनका बीपी नॉर्मल आ रहा था। तो हमें एक सेंस ऑफ ये लगा कि अगर हम इनके घर पे नहीं जाते, तो शायद इनकी बीमारी कभी पकड़ में नहीं आती। तो जो इस तरह का फैसिलिटी है कि एकदम बिल्कुल लोगों के घर तक सुविधा देनी चाहिए। ये है बिल्कुल, यही होना चाहिए। बट सब जगह ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, रेदर देन ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कि हर जगह एमबीबीएस डॉक्टर को ही भेजना है। अगर हम अपनी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जैसे हमारे कुछ हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनको अगर हम एआई टूल का सहारा दें, एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स आते हैं, उनके सहारे अगर वो कुछ उनके मरीज के सिम्पटम्स को लिख के, और एक अगर सेंट्रल हब पे कोई डॉक्टर बैठे हैं, अगर उनसे वो कम्युनिकेट करके अगर उनका टेलीमेडिसिन के माध्यम से अगर इलाज करा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब भी चीज़ें धीरे-धीरे लानी होंगी, क्योंकि एनीवेज़ हमारे देश में 1 लाख ही डॉक्टर्स बन रहे हैं हर साल, और अर्बन एरियाज़ में हमारा पॉपुलेशन अभी 30% इंडिया का पॉप अर्बन एरियाज़ में रह रहा है, और जो कि अभी 40% के अराउंड हो जाएगा कुछ सालों में। तो डेफ़िनेटली ये गैप तो रहेगा, इसको फ़िल करने के लिए मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकती है। मैं आप मेरा अगला सवाल टेक्नोलॉजी पे था, लेकिन उससे पहले हमें आपकी टीम से कुछ और फोटोग्राफ्स मिले हैं। तो विथ योर परमिशन मैं सारे फोटोग्राफ्स एक बार हमारे ऑडियंस के लिए दिखा देना चाहता हूँ बिफोर वी, बिकॉज आई नो टाइम इज ऑल्सो रनिंग। सो हम तो चाहते हैं आप हमें और टाइम दें, बट कंसिडरिंग द टाइम लिमिटेशन, आई विल जस्ट रन थ्रू द फोटोग्राफ्स वंस, एंड देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन फॉर द टेक्नोलॉजी एंड द सो माय क्वेश्चन टू यू, जो आपने अभी एआई टूल्स की बात करी और टेलीमेडिसिन की बात करी, डेफिनेटली
एआई एक रेवोल्यूशन है हेल्थ केयर में, और इनफैक्ट कुछ दिनों पहले गूगल ने भी एक डेमोन्स्ट्रेट दिखाया था अबाउट हाउ एआई कैन डायग्नोस आई के फोटो से कि आपके बॉडी का हेल्थ क्या है। सो दे आर जनरेटिंग ऑन शंकर नेत्रालय के साथ वो पायलट कर रहे हैं इंडिया में कि कैसे थ्रू वेरियस डिवाइसेस द फर्स्ट लेवल ऑफ डायग्नोसिस कैन बी डन एंड इट कैन बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द हब, जैसे आपने सेंट्रल हब बोला। तो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज इस हेल्थ केयर में एआई का क्या रोल रहेगा, और आज के डेट में अगर जो चल रहा है कि कोई प्रैक्टिशनर कर रहा है इसको, कि किसी और कंट्री में कर रहा है, हाउ डू यू थिंक इंडिया शुड अडॉप्ट, अगर आप उसके बारे में अवगत हैं, एंड व्हाट डॉक्टर्स शुड डू टू आल्सो हैव एन एनहांसमेंट ऑफ देयर लर्निंग। विल द डॉक्टर्स का करियर पे थ्रेट तो नहीं आ जाएगा कि भाई एआई ही डायग्नोस करके दे देगा, भाई पर्ची काट देगा? विल दैट हैपन? आई मीन व्हाट इज योर थॉट इन दैट? ओके। सो इसमें मेरा ये मानना है कि जैसे कि हर चीजें इवॉल्व होती हैं। पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग वो रील वाला कैमरा में फोटो करते थे, और आज के डेट में वो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो वो रील वाला कैमरा आउटडेटेड हो गया और बाहर चला गया। तो सेम वे में अगर डॉक्टर्स अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय में आउटडेट हो जाएंगे और वो मशीन ही डॉक्टर का काम करेगी। कुछ हद तक ये बात सही भी है। हम इन चीज इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक पहली कैटेगरी, दो कोई भी बीमारी को, एक छोटी मोटी बीमारियां जो कि आमतौर पे सर्दी खांसी जुकाम, छोटी मतलब कि बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है, जिनमें आपको एक दो सिम्टम्स हो रहे हैं, मामूली डायरिया हो रखा है, इन सब तरह की चीजों के लिए तो एआई बहुत ही अच्छा टूल है और वो डॉक्टर्स को डेफिनेटली आगे चल के रिप्लेस करेगा। बट कुछ थोड़ी कॉम्प्लेक्स तरह की बीमारियां होंगी जिनमें कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, अ लॉट ऑफ टीम वर्क, बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी। और फिर जिन तरीकों में, जिन जगहों पे डॉक्टर्स का एक जो ह्यूमन टच होता है, जो इमोशनल एंगल आता है, जहां उन सब चीजों की जरूरत होगी, उस पार्ट के लिए डेफिनेटली डॉक्टर्स रेलेवेंट बने रहेंगे। और हमारे डॉक्टर्स को अब अपने आप को उन लेवल तक अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा, जो एआई को, जो मशीन को ट्रेनिंग देने होगी, उसके लिए भी हमें डॉक्टर्स की ही जरूरत होगी। और डॉक्टरों का काम इनफैक्ट और आसान हो जाएगा इन इस तरह की मशीन लर्निंग टूल्स की वजह से। होगा क्या कि जो डॉक्टर अगर 1 घंटे में अगर 20 मरीज देख पा रहे थे, अगर मशीन एआई का अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो 30 से 40 मरीज वो देख पाएंगे। इससे जो हमारे इस देश में जो ये समस्या है कि डॉक्टर्स कम पढ़ रहे हैं, तो एक डॉक्टर की अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो भी ये बेनिफिट होगा। So I think you are right over the efficiency part. uh, और मुझे लगता है एक्सेप्टेंस, एक और इंसान तो लगेगा ही टू मैनेज द मशीनरी, एंड जो टूल जो मे बी हेल्थ केयर वर्कर होगा, नॉट अ बिल्कुल। डॉक्टर, हु कैन और डू इसमें द इनिशियल एक चीज मैं डायग्नोसिस। और ऐड करूंगा। जहां तक कि ये बात है, हमने अभी आपने कुछ समय पहले बोला कि एलोपैथिक पे भरोसा। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो और भी पैथीज हैं मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जो हमारे देश में बहुत आमतौर पे आयुर्वेदा, योगा और जो आयुष की जो ये सारी चीजें चल रही है, इनका भी एक रोल है। ये जो पद्धतियां हैं, इनका बहुत ज्यादा अभी रिसर्च नहीं हो पाया है और इनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया जा पाया है। बट जिन चीजों का एविडेंस नहीं है, हम उसको साइंस भी कहता है कि जो चीज प्रूफ नहीं की जा पा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत ही हो। हमें अपने आपको रिसर्च को और बढ़ा के उसको देखना है कि वो सही है या नहीं है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक हम उसको खारिज भी नहीं कर सकते। तो वैसी परिस्थिति में जो भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, हकीम्स हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं और लोगों को ट्रीट भी कर रहे हैं अपनी 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 पद्धतियों से। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आयुर्वेदा है, एक आयुर्वेदिक के जो वैद्य है, उनका भी जो भी लर्निंग्स है और जो अपना शास्त्र है, उसके हिसाब से अगर वो ट्रीट करते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं। इवन हमारे एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयां प्लांट बेस्ड होती हैं, तो उनकी भी कुछ प्लांट बेस्ड दवाइयां हैं, और अगर उससे वो ट्रीट कर पा रहे हैं तो इसमें कोई भी बुरा नहीं है। समस्या तब आती है जब एक नॉन ट्रेन्ड
व्यक्ति जो कि इवन आयुर्वेदा में भी ट्रेंड नहीं है और वो उस चीजों को प्रमोट करने लगता है, माल प्रैक्टिसेस करने लगता है, तो फिर समस्या आ जाती है। या फिर अपने मरीजों को इधर-उधर ना जाने देने के चक्कर में उसको ट्रीटमेंट करते रहते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता है कि इनको कब रेफर कर देना चाहिए दूसरे सिस्टम में। या फिर जो इमरजेंसीज हैं या फिर जो मिथ्स फैला रहे होते हैं, इन सब चीजों को अगर ना किया जाए तो भारत सरकार की भी बहुत अच्छी पहल हो रही है कि आयुष को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा के हिसाब से इलाज मिल पाए। इसमें 2005 में एक बहुत बड़ा काम हुआ हमारे देश में कि जो आयुष के जो सेंटर्स है उसको कोलोकेट कर दिया हमारे एलोपैथिक पीएससीज में। इससे क्या होगा कि लोगों का भरोसा भी जागेगा और वहाँ मैं जब पीएससी में वर्क कर रहा था अपने एमडी के दौरान में, तो मेरे एक मित्र थे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उसी पीएससी में काम करते थे और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो थोड़ा उनके भी साइंस को मैंने समझा और मेरा भी विश्वास बढ़ा उन चीज़ों पे। तो वो मैं ये देखता था कि उनको जहाँ भी लगता था कि ठीक है, उनकी दवाइयों से ये उनके क्षेत्र से अगर ये चीज़ें बाहर जा रही हैं, वो तुरंत एलोपैथिक डॉक्टर के पास रेफर कर देते थे, जो कि जस्ट सामने वाले कमरे में बैठे होते थे। तो इस तरीके से अगर कोलैबोरेशन होके अगर काम हो, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए सबसे बढ़िया होगा। आई थिंक ये आपने बहुत सही बात बताई है, बिकॉज हमारे देश का ये स्ट्रेंथ है कि ऐसी मेडिकल पद्धतियां हैं जो आयुष में आती हैं, अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी, यूनानी है, आयुर्वेदा है और नेचुरोपैथी है। तो अगर इन सिंक कोलैबोरेट कर पाए एंड हेल्थ केयर को कैसे लास्ट कॉर्नर, तो बिकॉज हमें देश को बीमार होने से और बीमारियों से बचाने का जो गोल है वो कॉमन है, बिल्कुल। इरेस्पेक्टिव ऑफ द पद्धति। अभी तो आई थिंक 21 जून को हमने ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया। मतलब आप ये सोचिए कि योगा हम लोगों ने ही पूरे दुनिया को बताया कि योगा करने से आप बीमारियों से ऐसे बचाव किया जा सकता है। और इनफैक्ट मेरा एमडी भी जो मैंने स्पेशलाइज किया वो प्रिवेंटिव मेडिसिन ही है। हम बीमारी होने के पहले क्या काम कर सकते हैं, उन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं अपना और उन चीज़ों को लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, इसके बारे में हम दिन-रात लगे रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा आजकल के जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हो रहे हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ की बीमारी है। ये सारी बीमारियाँ अगर आप कुछ चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखोगे, तो आपको जीवन में कभी नहीं होगा। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, नमक कम खाना और उसका नियमित व्यायाम करना, तो ये अल्कोहल और टोबैको ना लेना। अगर आप इन 3-4 चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं अपने जीवन में तो आपको बीपी, शुगर की बीमारी ही नहीं लगेगी। अगर ये बीमारी नहीं लगेगी तो ना आपका किडनी खराब होगा, ना आपका हार्ट खराब होगा, ना आपको डायलिसिस कराने में खर्च होगा। तो नीम हकीम खतरे जान, आप डॉक्टर से बचे रहोगे। कॉमन सेंस है लेकिन यही कॉमन नहीं है। जिस तरीके आपने बिल्कुल। तो बड़े सहज तरीके से बताया, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट लुकिंग एट द टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग योर टाइम, मैं आपसे खाली एक जस्ट पासिंग, well, before we close the session, concluding remarks. Being a doctor's day, doctor being such a noble profession, and जैसे आपने बताया हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक सिर्फ डॉक्टर इज द कैप्टन एंड विद द टीम देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टीम। व्हाट डू यू थिंक एंड इमर्जिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एरिया, जिससे कि नए कैरियर्स और अपग्रेडेशन का अपॉर्चुनिटी for the healthcare industry also is coming up. What do you think in the next coming 2 3 years? Uh, one is the doctor side. What is should be the uh, what should be the side of the पेशेंट्स, उनके लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का अप्रोच कैसे होना चाहिए और कैसे क्या सुविधा उनको सुविधा जैसे लगेगी? व्हाट डू यू थिंक कैन इमर्ज फ्रॉम द हेल्थ केयर इंडस्ट्री टू दी their, I wouldn't say customer, but beneficiaries? What do you think? This is one concluding remark, and we can then close the Doctor's Day special ओके। edition. तो कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में मैं ये मानता हूँ कि मरीज के साइड से अगर देखा जाए, अगर जो अभी हम सारी बातें की डॉक्टर के साइड से, मरीज के साइड से जो बातें हैं, मेरा यही मानना है कि जिसको जो बीमारी है, उसे उसे ठीक होने से मतलब है। अगर उसको कुछ भी हो रहा है, वो जैसे भी ठीक हो जाए। अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसके घर के सबसे नज़दीक में, कम खर्च में और आसानी से उसको सुविधाएँ मिल पाएँ। तो
ये सारी जद्दोजहद मुझे लगता है कि इस पूरे सिस्टम को और इस टीम को ही करनी है। मरीज तो भाई मरीज है, उसे अगर जो भी बीमारी है उसको उसके घर तक वो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट मैं परमिशन चाहूँगा, एक और हमारे पास लास्ट वीडियो है, शायद से आप हेल्थ डे पे, वर्ल्ड हेल्थ डे पे कहीं कुछ बात कर रहे हैं। हेल्थ सो टॉक आई दे विल रहा प्ले, था, हाँ। yes, so I will play that and we'll close the session. ओके। Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you again ओके, for थैंक coming. यू, And in नमस्ते। fact, I would be bothering you again and again for next edition when we get our audience response. उनको और किसी चीज in the field they want to know. So श्योर, इट विल बी माय प्लेजर। thank you again. Happy Doctors Day to you and your team. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और और जो बाजार का समोसा आता है, चटनी, अचार, पापड़, ये सब में नमक तेज रहता है, तो ये सब चीज़ को कम करना है, ठीक है। और कोई भी खाना में ऊपर से नमक नहीं लेना है। नमक का परहेज सबसे ज़रूरी है बीपी वालों के लिए। दूसरी चीज़, जितना काम धाम करते हैं आमतौर पे दिन भर अपना जो भी आप काम करते हैं, उसके अलावा रोज़ सुबह आधा घंटा सैर करना है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, उसके अलावा जितना कर रहे हैं आप, उसके अलावा रोज